Okay, let's move towards this topic. Now, today's lecture is all about interpreting and relationship between velocity and acceleration. Okay, so we will move towards this. Yes. A particle moves along a coordinate axis in the positive direction to the right. Its position at time t is given as this one. So my function of the position function is given as t cube minus 4t plus 2. Find velocity vt at vt equals to what? Vt equals to 1. So when time equals to 1, we have to find the velocity when time equals to 1 and find the acceleration when time equals to 1. Now there are two conditions. Is the particle moving from left to right or right to left at t equals to 1? Is the uh, particle speeding up or slowing down? इस पॉइंट में हमने क्या करना है कि देखना है कि क्या हमारा पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है इस टाइम के डोमेन में, या सेकंड हम ये देखेंगे कि जब मेरा टाइम का इंटरवल 1 है तो मेरी जो पार्टिकल स्पीड हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है और स्पीड डाउन हो रहा है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है या डाउन हो रही है. सो जो वेलोसिटी है ना मेरे पास, वेलोसिटी ये बेसिकली क्या होती है, ये इट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस व्हिच विल बी गिवन एज 3t स्क्वायर minus 4. Okay, 3t square minus 4. And what about acceleration? Acceleration will be the double derivative, so it will be double derivative, so ये क्या हो जाएगा 60. बट हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि at t equals to v at time equals to 1 for velocity and also for the acceleration. So मेरे पास हो जाएगा v for 1 will be putting t equals to 1, so 3 so it is 3 1 का square minus 4, so 3 minus 4 will be equals to minus 1. This is the velocity at time equals to 1. And second acceleration, one time value equals to 1, so it will be simple 60, so 6 multiplied by 1, so it will be written as 6. Okay, so this is the way कि हम जो है इसको सॉल्व करेंगे. अब हम देखेंगे बिकॉज वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव साइन है, दैट इज वेलोसिटी वी फाइंड इज -1, सो द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये हमें कैसे पता चला? यस, ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं. यहाँ यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ ये नेगेटिव होता है, और दिस विल बी पॉजिटिव इन दिस रीजन, ठीक हो गया, और नेगेटिव इस तरफ होगा. अगर पॉजिटिव होगा तो ये मेरा सेंटर है, ओरिजिन यहाँ से यूं ऐसे मूव करेगा. सो पॉजिटिव के केस में कैसे मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया. और नेगेटिव ये कोऑर्डिनेट है तो यहाँ ओरिजिन से एरो मेरा इस तरफ होगा, तो ये मूव क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दिस इज दी, क्या मेरा जो होगा वो क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट when t equals to 0, because velocity की value at 1 equals to -1, which will be less than 0. अच्छा जी. Second is the particle speeding up or slowing down at t equals to 1? कि क्या मेरे पार्टिकल जो है, जो मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है वो
उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. So because vt is less than 0 and acceleration at 1 is greater than 0, so velocity and acceleration are acting in opposite direction. Okay, so in other words, the particle is being accelerated in the direction opposite, okay, opposite to the direction traveling. So the particle is slowing down. इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी velocity कम होती है, let's say ये मेरी बॉडी मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, जब ये लेट्स से ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज करेगी. तो मेरी जो गाड़ी की जो स्पीड है या किसी चीज की भी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लोइंग डाउन हो जाएगी. सो अगेन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, position and velocity. So the position of particle moving along a coordinate axis is given as this one. We have to find velocity. At what time is the particle at rest? On what time interval is the particle moving from left to right or from right to left? Use the information observed and to sketch the path of a particle uh, along a coordinate axis. Okay, ये सब चीजें हमने find करनी है. So we'll move step by step. Okay. So first thing is जो मेरे पास पीछे given था that the position that s of t function, this one तो मैंने इसको derivate कर लेना है, so it will be 3t square minus 18t plus 24. ठीक हो गया. Now अब हम देखेंगे the particle is at rest कब होगा, जब t की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, जब टाइम 0 होगा. जब मैं टाइम लेट अस से इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24 इक्वल्स टू 0 करूंगा. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ t इक्वल्स टू 0 कर दूंगा और ये इक्वेशन इसके बराबर है. तो इसको मैं मिड टर्म ब्रेक कर लूंगा, तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट which time, at t equals to 2 and t equals to 4. अगेन इसे सबसे पहले मैंने क्या करना है कि जो वेलोसिटी की जो मेरे पास आएगी विद द डेरिवेशन ऑफ s, तो मेरे पास आ रहा है 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24. इसको इक्वल टू 0 करके इसका मैंने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है. मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट विल बी लाइक 3 यहाँ से कॉमन ले लूंगा और t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 आ जाएगा. इस 3 को मैं डिवाइड करके खत्म कर दूंगा, सो इट विल बी t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8. अगेन इट विल बी फैक्टराइज कैसे होगा, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 4. सो ये क्या हो जाएगा, t यहाँ से कॉमन ले लूंगा, t माइनस 4 माइनस 2 ले लिया, t माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 4 एंड t माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 2. अब लिखूंगा solving by solving we find that the particle has at rest at t equals to 2 and t equals to 4. अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास दो पार्ट हो गए. मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट में ऑन what time interval is the particle moving from left to right or from right to left. तो क्या होगा इसमें, इस तरह मैंने कोऑर्डिनेट ले लेना है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली साइन मुझे बताएंगे. द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू अगर
0 से बड़ी होगी तो लेफ्ट टू राइट होगा, अगर ये लेस होगी तो राइट टू लेफ्ट होगा हमेशा। तो मेरी जो वैल्यू है बेसिकली इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्सेस विच पार्टिकुलर इज मूविंग। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डोमेन डालूंगा, सिंस 3t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है मेरे पास हमेशा अगर जो है वो पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव डालूंगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, सॉरी, बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मैं 0 डालता हूँ तो ये t और ये t, लेकिन 24 है तो आंसर मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डोमेन और रेंज, और इसमें एक रेजिम फाइंड करता हूँ। अगर मेरे पास 0 0 क्या है कि जिस जिस वैल्यू पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ग्रेटर देन बेसिकली 0 है, क्योंकि आंसर में 24 आ रहा है, सेकंड 24 है, सेकंड 2 है। अब 2 की देखो, 3 एंड 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 18 टाइम्स ऑफ 4, सॉरी 18 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 24। अब ये होगा मेरे पास 4 टाइम्स 3 इज 12 plus 18 times 4 is, I have to calculate it. What will be the value? Just give me 1 second. 18, that is 72. That will be minus 72. Sorry, this is 2, not 4. Again, sorry, ये मैं 2 पुट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ तो 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ सिर्फ 2 t की वैल्यू है, इधर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 है, तो इट विल बी माइनस 36 प्लस 24। अभी देखो, प्लस 24 और प्लस 36 और माइनस 36, तो मेरा आंसर 0 आ रहा है एट 2। तो 2 को मैं शामिल नहीं करूंगा इसी तरह, 2 के अलावा 0 से स्टार्ट करके 2 को निकाल के और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसकी जो वैल्यू है, इस द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसलिए है कि वो सारा रीजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस केस में। ठीक हो गया। अब सेकंड केस है जब मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ। लेस देन 0 कब लूंगा, जब 2 होगा। 2 और 4, 2 और 4 वो इंटरवल है, आप पूछे 2 क्यों है और 4 क्यों है। 2 और 4 वो इंटरवल है जिस पे इसकी वैल्यू की, जिसमें मेरे सिस्टम की वैल्यू है या 0 है, 0 से थोड़ी छोटी है। तो अगर 2 लेता हूँ तो मैंने ऊपर पॉइंट किया कि इट इज इक्वल टू, इट इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं 4 भी डालूंगा तो इसकी 4 और 3 इस रेजिम में इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, तो इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 2, 4 ये दो वैल्यूज हैं जिसपे मेरे सिस्टम की वैल्यू जो है वो राइट से लेफ्ट आ रही है, यानी कि नेगेटिव इंटरवल में मूव कर रही है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, ये जो नंबर लाइन है बेसिकली, ये बेसिकली शो कर रही है 0, 2 और 4। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और 2 और 4 जो है बेसिकली देखना, ये क्या शो कर रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है इस रीजन में, 0 से लेके 2 तक। इस खारों को मैं मिटाता हूँ एक्चुअली, मुझे पता है, मैंने फाइंड किया 0 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन 2 इसमें शामिल नहीं है। सो ये वैल्यू रिजीम बताता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। फिर उसके बाद 2 से लेके, फिर यानी कि 2 के बाद जो है जितनी 2 से लेके 4 के को छोड़ के सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो ये रिजीम बताती है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये और ये एरिया पॉजिटिव हो गया। बीच में जो एरिया है 2 और 4 का, 2 और 4 का, यहाँ मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन अगेन कैसे करेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, फोर्थ पार्ट है यूज द इंफॉर्मेशन
obtained to sketch the path of the particle along a coordinate axis. Okay, so before we can sketch the graph we need to know the position. Okay, so मेरी पोजीशन जो स्टार्ट हो रही है वो t equals to 0 से स्टार्ट होके and time it changes with t equals to 2 and t equals to 4. Okay, when ts equals to 0 distance equals to 0, डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, ये फंक्शन के माना जब डिस्टेंस की वैल्यू एस एफ टी की 0 होगी तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और जब डिस्टेंस की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर अगर मैं डालता हूँ तो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 24, एज वेल एज डिस्टेंस की वैल्यू जब मैं डिस्टेंस की वैल्यू जब मैं टी की 4 डालूंगा तो मेरे पास आ रही है 20। तो ये वैल्यू सारी मेरे पास यहाँ के बनी है, राइट। दिस s इक्वल्स टू दिस वन, s इक्वल्स टू 2 पे 24 है और ये यहाँ पे। अब ये वैल्यू क्यों ली है हमने? बिकॉज मेरा फंक्शन जो है 0, 2 और 4 वैल्यू और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ है बेसिकली। तीन ऐसी वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जो जिसपे मेरा मेरा फंक्शन जो है वेरी कर रहा है, ठीक है। सो दिस मींस दैट अ पार्टिकल begins on the coordinate axis at 4. ओके, सो 4 से बिगन कर रहा है एंड चेंजेस डायरेक्शन एट 0। वो मुझे पता चलेगा कैसे कि कैसे बेसिकली, एंड वो मैं ग्राफ में बताता एंड 20 I have to move on to and 20 on the coordinate axis. Okay, अब ये देखें when t equals to 4, when मेरे पास t की वैल्यू 0 है तो ये मेरा जो डिस्टेंस है बेसिकली द पाथ ऑफ द पार्टिकल है बेसिकली, ये अब मेरे पास t इक्वल्स टू 0 पे कितना आ रही है? उसकी वैल्यू 4 आ रही है, ठीक हो गया। अब सेकंड t इक्वल्स टू 2 पे उसकी वैल्यू आ रही है 24, ठीक हो गया। तो ये यहाँ आ गया। t इक्वल्स टू 4 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। और अगेन जब अगली वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है तो इट विल मूव टुवर्ड दिस लाइन, यानी कि वैल्यू हमेशा मूव करेगी। वो हमें पता है कि पॉजिटिव इंफिनिटी तक वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। तो ऐसे पाथ बनेगा मेरा गिवन फंक्शन। ओके, नाउ पॉपुलेशन चेंज। व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज? पॉपुलेशन चेंज पे अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन चेंज इज द नंबर ऑफ एंट्रीज present in a population that the population growth rate of pt is defined as p derivation of t। तो पॉपुलेशन चेंज हमेशा हम क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो पॉपुलेशन उसका जो चेंज होगा सिंपल उसका क्या होगा? उसका डेरिवेटिव होगा। तो दिस इज नोन एज डेरिवेशन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू इज नोन एज पॉपुलेशन चेंज, ठीक हो गया। नाउ एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन, दिस इज द क्वेश्चन, this is the important question. Okay, this one. The population of a city is tripling every 3 years, every 5 years, ठीक है। हर 5 साल बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल होती जा रही है। It is, if its current population is 10,000, what will be the approximate population 20 years from now? Okay, तो हमने क्या करना है? मेरे पास गिवन कितनी है? गिवन है कि व्हेन pt इक्वल्स टू, जो मेरा फंक्शन है उसको उसमें मैंने वैल्यू डालनी है। लेट अस से अगेन मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ कि जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज ट्रिपलिंग एवरी year. It is current population is 10,000. What will be the approximate population for 2 years from now? Okay, so let pt be the population in 1000। हम लेट कर रहे हैं pt, बेसिकली ये लेट कर रहे हैं in will be the population t years from now। तो t years के लिए हम जो है तो population at thus we know that हमें पता है कि population at 0 when time equals to 0 कितनी होगी? ये बेसिकली इक्वल टू 10 है, based on the information
वो कैसे मिली मुझे? वो ऐसे मिली, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ट्रिपलिंग एवरी 5 years। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये ट्रिपल होती जा रही है। लेट अस से दैट ये पहले 10 थी, 10 की पावर 1, तो ये 10 आ गया पहले साल में। ठीक है, सेकेंड ईयर 10 की पावर 2 कितना आ गया? इट विल बी 100। सॉरी, एक सिंपल एक चीज इसमें ऐड करनी है। जस्ट गिव मी 1 sec। यस, आई हैव टू रेज दिस। ओके, ये 10 बेसिकली बेसिक पैरामीटर है, यानी कि जब जब हम ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया, 10 की पावर 1 है तो 10 आ गया, 10 की पावर 2 है तो क्या आ गया? 100 आ गई। 10 की पावर 3 है तो कितना हो गया? 1000। और 10 की पावर 4 है, सो इट विल बी, कितना हो जाएगा ये? 10,000 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से मुझे एस्टिमेट हो गया कि जो इसकी स्टार्टिंग है, यानी कि वो वैल्यू वैल्यू जो है वो कितनी है? वो बेसिकली 10 है। ठीक है, जो कि हर साल जो है उसको ट्रिपल होती जा रही है। और वो ये मुझे बता रहा है कि इफ इट इज करंट पॉपुलेशन जो मेरे पास 10,000 है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन 2 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन एट जीरो मेरे पास कितनी है। एट स्टार्ट इट विल बी इक्वल्स टू 10। ठीक हो गया, पॉपुलेशन आफ्टर 5 years p when applying t, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 30। so it will be equals to 30। now we have to estimate p derivative of 0। अच्छा, ये 30 आपके पास कहाँ से आया है? ठीक है, this 30 will come from p5, that is 10 multiply by, अब डिफरेंस देखो 5 और 2, यानी कि 5 minus 2, the answer will be 3, so it will be 30। so 30 minus 10 divided by 5 minus 0, so it will be 4। okay, so we estimate we can estimate the population। हम फिर पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर लेंगे कि मेरे पास आफ्टर 2 years कितना होगा। इट विल बी p of 0 plus 2 times of p of this one। अच्छा, 2 times इट वर्ड जो मुझे चाहिए 2 years बेसिकली। सो p of 0 मैंने फाइंड कर लिया, वो कितना है? p of 0 10 है। ठीक है, और डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, सो इट विल बी 18। सो 18 मींस दैट इट विल बी 18,000। ओके, सो ये डिस्क्रीट नंबर है, इसके अंदर 1000 मैंने खुद ऐड करना है, बिकॉज मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ t इज इन थाउजेंड्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, ओके, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? अच्छा, इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट समराइजिंग। देखें, करंट जो बेसिकली पॉपुलेशन है मेरे पास, वो है मेरे पास पॉपुलेशन व्हेन t इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी 10,000। तो मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ, यानी कि सिर्फ 10,000 लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा 10। so इसका मतलब ये होगा कि 10,000। ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज ट्रिपलिंग एवरी 5 years, तो इसका मतलब ये है कि हर 5 साल बाद व्हेन टाइम इक्वल्स टू 5, अभी कितनी है? 10,000 है, तो 5 साल बाद कितनी कह रहे? ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि 10 है अभी,
तो ट्रिपल क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10, that will be 30, so it will be approximately 30,000 to 30,000, so it will be 30 here. Okay, so after this p of 0 जब मैं put करूंगा, so it will be 5 minus p0 divided by 5 minus 0, so it will be 30 minus 10 divided by 5 minus 0 equals to 4. So p, अब ये इसका फंक्शन है बेसिकली, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था. So p of 0 will be given as p of 0 equals to 10 plus 2. 2 is basically the incremental years के 2 years basically पूछ रहा है, और p derivative it will be 4, so 18. So the answer is 18,000. Okay. Changes in cost and revenue. So जो cost है, if Cx is the cost of producing X items, then the marginal cost will be M mean marginal and Cx mean marginal cost. So it will be equals to derivative of this one. So again, अगर हमने marginal cost find करनी है, किसी चीज में कितना margin आ रहा है cost और उसमें sale में जो भी है, so it will be just derivative of the cost function. Okay, if R is the revenue, this is the first theorem. Okay, first step. Second is if R of X is the revenue obtained from selling X items, then the margin of revenue will be इसी तरह M RX और R का चेंज हो जाएगा. If P of X यानी कि जो प्रॉफिट है equals to RX minus CX यानी कि रेवेन्यू माइनस सेल माइनस कॉस्ट. ठीक हो गया. अगेन जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही होता है. देन द मार्जिनल प्रॉफिट विल बी एम पी एक्स. सो एम पी एक्स किसके बराबर होगा? सेम एज पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अच्छा, इसका बेसिकली क्या होगा, इसमें ये m जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड पे. जस्ट अ मिनट, आई हैव टू ड्राइव दिस इज द इंपॉर्टेंट. m p x मैंने फाइंड करना है. MPX. अभी मुझे पता है कि जो PX है, जो प्रॉफिट है, it will be equals to revenue minus cost. ओके, सो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब मैंने MPX फाइंड करना है, so it will be the MPX, it is equals to derivative of PX. ये मुझे पता है, सिंपल मैं चेंज फाइंड करूंगा. लेकिन इस केस में जो है MPX, तो P of X मुझे ये पता है, इस पूरी टर्म के साथ M मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी M RX माइनस M CX. ठीक हो गया. तो M RX क्या होता है? R का डेरिवेटिव माइनस M CX क्या होगा? C का डेरिवेटिव. सो P डेरिवेटिव will be equals to R derivative minus C derivative. Okay. Now MCX will be this one. So आप किसी भी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. I am applying limit h approaches to 0. So C cos x plus h minus C of x divided by h. So this is the formula. Okay. Now इसके बाद हमें क्या करना है? Applying margin revenue. अब हमने मार्जिन रेवेन्यू जो है फाइंड करना है. सो कैसे फाइंड करेंगे? Give me one second. Okay.
Okay, applying marginal revenue. Now assume that the number of barbecue dinners can be sold X can be related to the price change P by this one P of X. ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये मेरे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई. सही हो गया. In this case, the revenue in the dollar obtained is this one. तो ये मेरे पास revenue का function आ गया सारा. Use the marginal revenue function to estimate the revenue obtained from selling the 101st barbecue dinner and compare this to the actual revenue obtained from the sale. Okay. So हमने marginal revenue find करना है. Okay. So marginal revenue will be what? MRX. ठीक हो गया. ये हमें पता है revenue MRX, which will be equals to R derivative of X. What is the value of R of X? This is the value of RX. So simple, ये 2 इसके साथ नीचे उतर जाएगा, so it will be minus 0.06x plus 9. तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया मेरे पास. ठीक है. Next we use R derivative of 100 to approximate R of 100 minus R of 10. The revenue obtained from the sale of the 101st dinner. Okay. So you can find. अब क्या करना है हमने बेसिकली रेवेन्यू देखना है कि जो 101st बारबेक्यू डिनर से हमारे पास आया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में से जो है 100 फाइंड करेंगे, उसमें से 101 जो है वो माइनस कर देंगे सिंपली. सो फर्स्ट थिंग टू डू इज, सिंस रेवेन्यू 100 विल बी व्हाट. अब रेवेन्यू का जो मेरे पास आया है डेरिवेटिव आया फंक्शन ये वाला, इस वैल्यू पे मैंने क्या करना है, R of 100 find करना है. So it will be equals to what? It will be equals to minus 0.06 with the x value 100 plus 9. तो ये मेरे पास approximately equals to 3R. Yes, the revenue obtained from 101st dinner is. अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू 100 है. तो दिस इज बेसिकली द रेवेन्यू obtained. ये मेरे पास रेवेन्यू obtained हो गया from the sale of the 101st dinner is approximately $3. The actual revenue कैसे निकालेंगे, R100 minus this, so it will be approximately equals to 602.9. So what is the value 602? ये कहाँ से मेरे पास वैल्यू आई? This value is basically ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा अपनी सारी वैल्यूज में और 101 तक जाऊंगा. ठीक है. और अपनी रेवेन्यू वैल्यू में, किसमें, रेवेन्यू R ऑफ X में फाइंड करूंगा. R का फंक्शन किधर है, ये फंक्शन है. इससे पहले मैंने 100 वैल्यू डाल देंगे, सो इट विल बी द वैल्यू इक्वल्स टू 602.97. और सेकेंडली मैं 100 डालूंगा तो दिस विल बी 600. तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 2.97 आ रहा है. अब देखें यहाँ से जो हमने डेरिवेटिव से फाइंड किया था वो 3 था, और जो डायरेक्ट फाइंड किया था उसे 2.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स है. नाउ अगेन समराइजिंग इट, सो M Okay. okay, okay, so M of
r of x will be equals to r derivative of x. दिस इज द कॉस्ट फंक्शन जो मैंने फाइंड किया, बेसिकली ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, इसमें सिंपली मैंने r डेरिवेटिव ऑफ जो 100 बेसिकली क्या होता है, वो होता है मेरे पास r101 माइनस r100 रेवेन्यू की बात है। सो सिंपली पुटिंग जो मेरे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी ये वाली, इसमें 100 वैल्यू पुट कर देना तो मेरे पास 3 आ जाएगा। एस्टिमेटिंग दैट कि मेरे पास 10 फर्स्ट डिनर का जो है अप्रोक्सीमेटेड जो सेल हो रही है वो इतनी हो रही है। ठीक है, कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर इतना हो रहा है। नेक्स्ट इज कि आप क्या करते हो, सिंपली रेवेन्यू में 101 माइनस रेवेन्यू 100। ठीक हो गया। रेवेन्यू का फंक्शन किधर है, ये सिंपल रेवेन्यू का फंक्शन है, और मैंने इस वैल्यू में बेसिकली फाइनल वैल्यू है 101 का स्केयर डालना है, 101 डालना है पहले, और फिर 100 डालना है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, which will be approximately equals to 2.97। तो दोनों मेथड से मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। ओके, now this will be I will start this in the next lecture, derivatives of trigonometric function. Okay, so we'll meet in the next lecture shortly.